خبر شامل کرتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے، جہاں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ شیخ خورونوش اور سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیلات نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں مہنگائی کی اڑان تھم نہ سکی۔ اشیاء خوردونوش کا سامان اور سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب کے ساتھ ساتھ اب تو درمیانہ طبقہ بھی فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ عوام کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ کم سے کم اشیاء خوردونوش کی چیزوں میں کمی کی جائے۔ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، اتنا کماؤ اس سے زیادہ خرچہ ہے۔ پریشان پہ پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو اچھا بھلا جو سفید پوش ہے نا وہ بھی مر رہا ہے بیچارہ۔ کیا کریں اب، حکومت کی پالیسیاں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی حکمران وقت اس پر توجہ دے تو کوئی کام بنے۔ ہم تو پریشان ہو گئے یار سوچ سوچ کے۔ کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس کا حل کیا ہے، اور ایک بجلی کے بلوں سے سب پریشان ہیں۔ تو مہنگائی کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ غریب آدمی کو تو عزت سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ یہ یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں نا وہی کہ وہی تیری میری باری میں چل رہے ہیں۔ عوام جب تک نکلے گی نہیں نا کام ان کا اترے گا نہیں۔ عوام نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ بجلی نہیں ہے، سولر کے پیچھے جا رہا ہوں، پینل کے پیچھے جا رہا ہوں، 5 لاکھ کا سیٹ اپ لگا رہا ہوں، مگر ان سیاسیوں کے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ کیمرہ مین عامر عباسی کے ساتھ محمد نوید، روز نیوز، حیدرآباد۔ جیکب آباد میں مہنگائی پر کنٹرول نہ ہو سکا، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ گوبھی، بھنڈی سمیت مختلف سبزیاں قوت خرید سے باہر۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز غیر فعال، شہری منافع خوروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ تفصیلات جیکب آباد سے زاہد کھرل کی اس رپورٹ میں۔ جیکب آباد میں مہنگائی نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے تو دوسری جانب شہری سبزی خریدنے سے بھی قاصر ہو چکے ہیں، جبکہ اروی، گوبھی، بھنڈی سمیت مختلف سبزیوں کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹی غیر فعال ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے دکاندار اور خریداروں نے روز نیوز کو بتایا ہے کہ جو آلو ہے اس کا بھی ریٹ، گوبھی ہے، جو پیاز ہے، سارے سبزی، اروی ہے، ساروں سبزی کا جو ریٹ ہے آسمان پہ۔ جو غریب مسکین اور دیہڑی دار طبقے والا ہے وہ بہت پریشان ہے ان کی وجہ سے۔ کیا کہ ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کرتے ہیں، خدا را پرائس کنٹرول کو فعال کیا جائے۔ پرائس کنٹرول کا یہاں پہ آفس ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ وہ چیک کیا جائے۔ یار سبزی جس وقت جو ہے بہت مہنگا ہے۔ سبزی جو ہے ٹماٹر ہوئے، آلو ہوئے، بھنڈی ہوئے، کسی چیز جو غریب کو جو ہے بالکل وارے پہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی قیمت جو ہے اوپر ہے۔ وجہ یہی ہے تو مہنگائی ہے، اوپر سے مہنگائی ہے۔ غریب لوگ ادھر والے جو ہے نا نیچے طبقے والے ہیں، ادھر جیکب آباد میں مزدوری کماتے ہیں، 1500 روپے کماتے ہیں۔ ادھر سبزی بہت مہنگی ہے، جو بھی پوچھتا ہے یہ کتنے کی ہے، یہ کتنے کی ہے، کم سے کم تھوڑا تھوڑا سودا لے بھی 500-700 روپے لے جاتے ہیں۔ 500-700 روپے وہ کچھ کماتے ہیں، وہ کیا سبزی لے لیں؟ ساری سبزی مہنگی ہے، اوپر سے مہنگی ہے، ہم کیا کریں؟ پیاز تو ضرورت والی چیز ہے، وہ بھی 150 روپے کلو ہے۔ آلو ہے، آلو 80 روپے کلو ہے، یہ لال والا آلو ہے 150 روپے کلو ہے۔ ٹماٹر ہے 120 روپے، ساری سبزی مہنگی ہے، غریب لوگ بہت پریشان۔ کیمرہ مین عبدالحمد گوندل کے ساتھ زاہد کھرل، روز نیوز، جیکب آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خون سفید ہو گیا۔ پاک پتن میں بدبخت بیٹے نے زمین کے معمولی ٹکڑے کی خاطر اپنے نابینا باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پاک پتن تھانہ رنگ شاہ کے علاقے 18 EP چک تلیقہ میں قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ درندہ صفت بدبخت بیٹے نے جائیداد کے لالچ میں اپنے نابینا بزرگ باپ کو قتل کر دیا۔ انصر نامی ملزم نے رات کو سوتے ہوئے تیز دھار ٹوکے سے باپ کی گردن ہی تن سے جدا کر دی۔ پولیس تھانہ رنگ شاہ نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ DPO کا کہنا ہے کہ باپ کے قاتل ظالم بیٹے کو کڑی سزا دی جائے گی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ صدر اور اقبال ٹاؤن ڈویژنز کی کارکردگی، لا اینڈ آرڈر، کرائم کنٹرول، پبلک سروس ڈیلیوری سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ CCPO لاہور کی 12 ربیع الاول کی ریلیوں اور جلوسوں محافل کی سیکیورٹی کے لیے اضافی نفری کی تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران 12 ربیع الاول کی تقریبات کے منتظمین سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ ضلع پولیس ننکانہ صاحب نے ماہ اگست میں 12 خطرناک ڈکیت گینگز کے 43 ارکان کو گرفتار کر کے ان سے 92 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان مسروقہ برآمد کر لیا ہے۔
तफसीलात ननकाना साहब से ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। ज़िले पुलिस ननकाना साहब ने माह अगस्त में 12 डकैत गैंग के 43 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 92 लाख रुपए से ज्यादा मालिक की नकदी और माल मसरूका बरामद किया। ज़िले पुलिस ने 154 मुलजमान इश्तिहारी, 57 अदालती मफरूर और 29 साबकार कार्ड याफ्तगान गिरफ्तार किए। ज़िले पुलिस ने नाजायज असला कब्जा में रखने, हवाई फायरिंग और नुमाइश करने पर 124 मुकदमा दर्ज किए और मुलजमान से 93 पिस्टल, 8 कलाशनकोफ, 24 राइफल्स और 593 गोलियां और कारतूस बरामद किए। मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान 64 मुकदमा दर्ज करके 58 किलो से ज्यादा मंशियात जिसमें चर्स, हीरन, अफ्यून और आइस शामिल है। इसके अलावा 778 लीटर शराब भी बरामद की। ताहिर महमूद, रोज न्यूज, ननकाना साहब। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीपीओ उकाड़ा राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में एएसपी रिनाला सर्कल की सरबराही में पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 3 डकैत गैंग्स और मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का सामान, असलिया और मुंशियात बरामद कर ली। तफसीलात अब्दुल जब्बार खान की इस रिपोर्ट में। एएसपी नाला सर्कल अदनान गुल की सरबराही में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एसएचओ थाना सिटी मोहम्मद अरशद की सरबराही में पुलिस की कार्रवाई डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक नासर डकैत गैंग के 2 अरकान सरखाना समेत गिरफ्तार। मुलजमान की कब्जा से नाजायज असला और सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश नाला खुद में डकैती और राहज़नी की वारदातों का इंकशाफ किया है। इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। जबकि दूसरी कार्रवाई में थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोश अरसलान को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 5 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम थाना सिटी नाला खुद के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात भी फरोख्त करता था। थाना शहर पुलिस ने एसएचओ मोहम्मद अख्तर खान की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश गुलाम कमर को गिरफ्तार करके 2 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना सरगरा पुलिस ने एसएचओ अली रजा की सरबराही में कार्रवाई करते हुए अंसरी डकैत गैंग के 3 मुलजमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया, जिसमें नकदी 2 लाख रुपए और नाजायज असला शामिल है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश थाना सरगरा की हदूद में 13 डकैती और राहज़नी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। जबकि एसएचओ थाना सदर मोहम्मद मंशा ने कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। मुलजमान ने थाना सदर की हदूद में डकैती और राहज़नी की 8 वारदातों का इंकशाफ किया है। डीपीओ उकाड़ा ने नाला सर्कल पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल जब्बार खान, रोज न्यूज, नाला खुर्द। चाय के शौकीन अफराद की सेहत की हिफाजत, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। जालसाजी में मुलव्विस यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात फैसलाबाद से महमूद अहमद की इस रिपोर्ट में। चाय के शौकीन अफराद की सेहत की हिफाजत, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। जालसाजी में मुलव्वस यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजम गिरफ्तार। 200 लीटर केमिकल मिला दूध, 300 किलो चाय की पत्ती, 1 मन ममनुआ रंग, बर्नर, सिलेंडर, मशीनें और पंप जब्त। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का निशाताबाद में ऑपरेशन। निशाताबाद में वाकया जाली पत्ती यूनिट पर जाली लेबल बरामद कर लिए गए। DGPFA का कहना था इस्तेमाल शुदा पत्ती को खुश्क करके ममनुआ रंग लगाकर तैयार किया जा रहा था। ममनुआ रंगों की मिलावट से तैयार जाली मुजरे सेहर चाय पत्ती को दिलकश पैकिंग लगाकर मार्केट में सप्लाई किया जाना था। फूड सेफ्टी टीमों ने मजीद तफसीली तज्जिये के लिए चाय की पत्ती के सैंपल्स लेबोरेटरी भिजवा दिए। DGPFA का मजीद कहना था सत्याना रोड पर नाकाबंदी के दौरान फैसलाबाद शहर के लिए फरोख्त किए जाने वाला 200 लीटर मिलावटी जाली दूध तल्फ किया गया। चाय की पत्ती और बुनियादी खुराक की तैयारी में मिलावट करने वालों के दिन गिने जा चुके। फूड बिजनेस ऑपरेटर आला मेयार को यकीनी बनाएं, खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं अमल में लाई जाएंगी। शहरी खुराक के मतलब किसी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। कैमरा टीम के साथ महमूद अहमद, रोज न्यूज, फैसलाबाद। सवात में रेस्क्यू एहलकार अपनी जान पर खेलकर हर नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार, दिन रात अवामी खिदमत में पेश। रेस्क्यू एहलकारों के जज्बे को सवात की आवाम भी कदर की निगाह से देखते हैं। तफसीलात सवात से गुफरानुल्लाह की इस रिपोर्ट में। सख्त गर्मी की तपिश हो या सर्दी की शिद्दत, सवात के रेस्क्यू एहलकार हर हाल में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। शदीद मौसम के बावजूद वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, चाहे उन्हें जलती धूप में सड़कों पर खिदमत अंजाम देनी हो या सर्दी की शदीद बर्फबारी के दौरान लोगों को बचाने के लिए निकलना हो। सवात के रेस्क्यू एहलकारों की खिदमत का दायराकार बहुत वसी है। ये न सिर्फ कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजले और बर्फानी तौदे गिरने के दौरान मुतासिरा लोगों की मदद करते हैं, बल्कि रोजमर्रा की हंगामी सूरत हाल जैसे ट्रैफिक हादसा, आग लगने और पानी में डूबने वाले वाकयात में भी फौरी रद्द अमल देते हैं। इन एहलकारों को जदीद आलात, रेस्क्यू बूट्स, एम्बुलेंसेज और दीगर जरूरी सामान से लैस किया जाता है ताकि वो हर किस्म की इमरजेंसी का मुअस्सर तरीके से मुकाबला कर सके। ये रेस्क्यू 1122 जो है हर किस्म की इमरजेंसी को, किसी भी नागहानी आफात को जो है रिस्पॉन्ड करती है, 24/7 करती है। ख्वाह उनका ताल्लुक जो है आग से हो, जलजले से हो, सैलाब से हो
या मेडिकल से हो, किसी भी शोबे से हो, किसी भी तरीके से हो, उनको जो है ये रिस्पॉन्ड करती हैं। जो सैलाब आई थी बरीकोट में, तो उनमें हमने जो है लोगों को मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड किया था और उनमें हमने बहुत सारे विक्टिम्स को जो है इवैक्यूएट करवाई थी। इनकी पेशावराना तरबियत और अवामी खिदमत के लिए बेलोस जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। सवात जैसे पहाड़ी और मुश्किल इलाके में ये खिदमत और भी अहम हो जाती है, जिनके यहाँ मौसम और रास्तों की दुश्वारियों की वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ करना ज्यादा मुश्किल होता है। रेस्क्यू एहलकारों का ये जज्बा और मेहनत सवात के अवाम के लिए एक मजबूत सहारा है और इनकी खिदमत को वसी पैमाने पर सराहा जाता है। दिन रात अवामी खिदमत में पेश रेस्क्यू 1122 की कारकिर्दगी हमेशा से ही काबिल तहसीन रही है और रहेगी। कैमरामैन नासिम खान के साथ गफरानुल्लाह, रोज न्यूज़, सवात। कानकोर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 12 रबीउल अव्वल इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास की सरबराही डिप्टी कमिश्नर अमीर फजल अवैसी ने की। इजलास में शरीक उलमाए कराम ने मुतालबा किया कि 12 रबीउल अव्वल बेहतरीन अंदाज में मनाने के लिए शहर भर से कूड़े कचरे को हटाया जाए, जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। अब खबर शामिल करते हैं भावलपुर से, जहां हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िले इंतज़ामिया भावलपुर के ज़ेर एहतमाम मैराथन रेस दौड़ भावलपुर दौड़ का इनेकाद किया गया। मैराथन रेस 7 किलोमीटर पर मुई थी, जिसमें 600 से ज़ायद मर्द हज़रात ने हिस्सा लिया। रेस में नुमायां पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों में कैश इनामात और ट्रॉफी भी दी गई। मैराथन रेस का अहवाल बहावलपुर से मोहम्मद असद भुट्टा की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया भावलपुर के ज़रिए एहतमाम मैराथन रेस भावलपुर दौड़ में हिस्सा लेने वालों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन, फरीद गेट, लाइब्रेरी चौक, ओल्ड सीमत चौक, काली पुलिस, सदर पुलिस, डीसी चौक, इस्लामी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस चौक से होते हुए दीवान वाली पुली, जेल रोड, रेडियो पाकिस्तान से होते हुए ड्रिंक स्टेडियम भावलपुर में रेस का इख्तिताम किया। मैराथन रेस में पहली पोजीशन हासिल करने वाले शहबाज अहमद ने 25 मिनट 29 सेकंड में फासला तय किया और 2 लाख रुपए कैश इनाम और ट्रॉफी जीती। मैराथन रेस में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद सजाद ने 26 मिनट 1 सेकंड में फासला तय किया, उन्हें 1.5 लाख रुपए कैश इनाम और ट्रॉफी दी गई। जबकि तीसरी पोजीशन वाले शाहिद यासीन 26 मिनट 32 सेकंड में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। इसके अलावा 20 पोजीशन तक रेस होल्डर्स को भी इनामात दिए गए। नीज मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाले बच्चों को कैश इनाम दिया गया। तकरीब तकसीम इनामात से डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अहमद जफा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग और खिलाड़ियों को खेल की सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैराथन रेस में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कबल अज़ीज़ तकरीब तकसीम इनामात में डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर आमिर हमीद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मैराथन रेस की अहमियत और फादियत बारे बयान किया। मुनक्ता मैराथन रेस में इलाके के लोग, स्पोर्ट्समैन, शायकीन समेत सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स सरगर्मियां खुशाइंद इकदाम है। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद असद भुट्टा, रोज न्यूज, बहावलपुर। इसके साथ ही रोजनगर से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए रोज न्यूज।